are key and very important in eye of the upcoming Lok Sabha elections. The Chandigarh Municipal Corporation elections, the voting for mayor has concluded just a little while ago. Now, why this is important is because this was considered the first INDIA alliance test, because the Congress and the Aam Aadmi Party shared votes. They actually shared a candidate and their candidate lost to the BJP candidate. BJP's Manoj Sonkar was declared the mayor of the Chandigarh area. He won the mayoral polls with 16 votes against the 12 votes that were bagged by the Congress Aam Aadmi Party candidate. 8 votes were declared invalid, and we're going to take a deeper dive on that aspect in just a second, because it's exactly that aspect that both the Aam Aadmi Party and the Congress protested against immediately after. Breaking news in this story, let's take a look. Okay, we told you a little earlier that much ruckus had followed Sonkar winning the mayor's seat, the BJP candidate winning the mayor's seat. Protests broke out against the presiding authority. Marshals had to be called in. Now the Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha saying this shows the BJP can't win anything without using illegal tactics. He said, what will they do during the Lok Sabha elections? He's also said, does the BJP want to make this country North Korea? Remember, 8 votes were declared invalid, but the process via which they were declared invalid, that is what's being debated. We're going to play out for you what Raghav Chadha had to say, then take a look at other comments, and then we'll connect with reporters. ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है? आपस में हमारा फैसला हुआ था कि जैसे पहले बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी को जीतने दिया, हम लोगों ने गैर हाजिर रहकर इस बार ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जैसे आप जानते हैं दिल्ली में पार्टीज का एक गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के नाम पर गठित हुआ था। उसमें दोनों आप और कांग्रेस उसके सदस्य हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। वहां अभी बातचीत चल रही थी। इसमें इतनी जब बीच में ये इलेक्शन आए जिनका फैसला एकदम करना था, तो यहां हमें उसी माहौल को बनाने के लिए जिसमें वहां था कि एज फार एज पॉसिबल आपस में अलायंसेज होते रहेंगी, उसके लिए यहां हमने ये फैसला किया, हम इकट्ठे मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को ही सिर्फ हराने के लिए नहीं, सही मायने में लोकतंत्र को फिर पुनर्जीवित करने के लिए। Okay, before we go over to our reporter, I just want to give you the numbers here. The BJP had 14 councillors. The Aam Aadmi Party and the Congress, which ran together, put together, they had 13 plus 7, so 20 councillors. They should have outpaced the BJP. They weren't able to, and that's the controversy here. The Aam Aadmi Party saying, why were 8 votes declared invalid? Let's go to our colleague Aman Bharadwaj, who's reporting to us from the ground. Aman ji, आप हमारे साथ थोड़ी देर पहले भी जुड़े थे. आप हमें अब समझा सकते हैं क्यों डिक्लेयर किया गया उन 8 वोट्स को इनवैलिड? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बीजेपी की ओर से ही लगाया जाता है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेन तौर पर इल्जाम ये है कि वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। इसलिए हो सकता है कि जब उन्होंने वोट क्रॉस चेक किए और काउंट किए, तो उस समय उन्होंने जो नोट डाउन किया, सिग्नेचर किए जहाँ पे, तो वहाँ पे वोटों को इनवैलिड कर दिया, और उसकी एक वीडियो भी सर्कुलेट की जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। सबसे बड़ा खदशा उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उस वीडियो से जताया जा रहा है कि 8 वोटों को इनवैलिड खुद उनकी ओर से करार किया गया, और 8 वोट इनवैलिड होने की वजह से, चाहे 20 वोट का मार्जिन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास, लेकिन 8 वोट जब माइनस हो जाते हैं तो 12 वोट के साथ अपना मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस नहीं बना पाई। और बीजेपी, जिनके पास 14 काउंसलर्स तो पहले ही थे, लेकिन 1 वोट सांसद का और 1 वोट अकाली दल का, यानी कि 2 वोट और जुड़े, जिससे 16 वोट हो गए, और 16 वोट के साथ मेयर 12 वोट और 16 वोट के कंपैरिजन में 2 वोट आगे जाकर बीजेपी ने अपना
अपना मेयर बना लिया। और जो इसके अलावा क्योंकि 35 वोट कुल होते हैं, 35 काउंसलर है, लेकिन 36वीं वोट जो किरण खेर सांसद हैं चंडीगढ़ से उनकी होती है, और वो बीजेपी को ही, क्योंकि वो बीजेपी से सांसद है तो बीजेपी को उन्होंने वोट किया। तो ये सब पूरा सिनेरियो मिलाकर जो है वो बीजेपी ने आज अपना मेयर बनाया है। और जो 6 वोट इनवैलिड की गई उसके 2 मुख्य तौर पर कारण है। एक कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब 18 तारीख को चुनाव था तब बीमार हो जाते हैं अचानक, और उस समय भी बीजेपी इंडी अलायंस के ऐलान के बाद उस तरीके का रवैया इख्तियार कर रही थी। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इल्जाम है कि चुनाव होने नहीं जैसे देना चाहती। और उसके बाद हाईकोर्ट जाया गया इंडी अलायंस की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। कांग्रेस के कैंडिडेट ने विड्रॉ किया अपना जो उनका कैंडिडेचर था, और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 30 तारीख को आज चुनाव हुए। और उसके बाद जब ये सिनेरियो आ जाता है कि 8 वोट इनवैलिड निकले, और इसको फिर कोइंसिडेंस नहीं माना जा सकता। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट का रुख करना, हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव होना, प्रिजाइडिंग अफसर का पहले बीमार होना पिछले चुनाव में, इंडिया अलायंस के ऐलान के बाद वो भी, और 8 वोट आज अचानक जाकर इनवैलिड हो जाना, क्योंकि उसमें भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीजेपी जैसे उनके नेता ही हैं जो ताल्लुकात रखते हैं बीजेपी से। तो ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मीडिया को भी नहीं जाने दिया कवरेज के लिए, इसके बारे में और बता सकते हैं ये क्यों किया गया? जी, मैं उसी बात पे आता कि बीजेपी की ओर से ये सब किया गया। और दूसरा सबसे अहम ये था कि बीजेपी के मीडिया के लिए खासकर आज जो हाउस में प्रेस गैलरी है वहां पर, जहां पर औसतन मीडिया हमेशा रहता ही है कवरेज के लिए, वहां पर मीडिया की एंट्री आज बंद कर दी गई। टीवी स्क्रीन जो लगाए गए उसमें पहले विजुअल्स ही थे, वीडियो ही चल रही थी, ऑडियो भी बंद थी, लेकिन बाद में वीडियो चली और अंदर एंट्री तक नहीं दी गई। जो हालांकि पिछले चुनाव में जब 18 तारीख को चुनाव था उस दिन एंट्री थी और पास बने हुए थे मीडिया के, लेकिन आज जो एंट्री थी वो भी बंद थी, और मीडिया को सिर्फ एक टीवी स्क्रीन के जरिए ही अंदर की प्रोसीडिंग दिखाई गई। और रीजन क्या दिया गया मीडिया को कि हम आपको अंदर भी नहीं जाने दे रहे? कानून व्यवस्था ही, लॉ एंड ऑर्डर, और कोई खलल ना पड़े, कानून व्यवस्था ना खराब हो, कोई हल्ला ना हो, ये तर्क देकर ही, क्योंकि कोई लिखती या रिटन में ऑर्डर्स नहीं निकाले मीडिया के लिए, सिर्फ वर्बल जो पीआरओ डील करते हैं एमसी के, उनकी ओर से वर्बली कन्वे किया गया कि आज अंदर कवरेज नहीं अलाउड है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर टीवी स्क्रीन जरिए ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। एक आखिरी प्रश्न, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कोई प्लान है इसे चैलेंज करने का आगे के लिए? देखिए, क्योंकि इसकी परसेप्शन सबसे पहले जिक्र करना बनता है, क्योंकि चंडीगढ़ राजधानी है तो पंजाब और हरियाणा पर इसका बड़ी तरीके की पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है। तो एक परसेप्शन जरूर है कि इंडिया अलायंस का पहला चुनाव था, और वो भी चाहे वोट इनवैलिड थे कैसी भी, लेकिन वो इंडिया अलायंस हार चुकी है। तो एक वो परसेप्शन को ठीक रखने के लिए काउंटर जरूर है, और हाईकोर्ट जाने का ऐलान जरूर किया गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से, जो इंडिया अलायंस में यहाँ पर चुनाव लड़ा गया, कि हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा और वहां पर जो तमाम फैक्ट्स हैं और जो आज की कार्रवाई थी उसके रिकॉर्ड को हाईकोर्ट अपने पास रखे, सीज करे उनको और मॉनिटर करे, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई भी है उसको बुलाकर मंगवाकर जो ऑब्जर्व किया जाए। हाईकोर्ट जाने का, ये सब फैक्ट्स के साथ हाईकोर्ट जाकर जल्द से जल्द सुनवाई करवाने का दावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। लेकिन इससे साथ इतना जरूर है कि मेयर ने चार्ज ले लिया है और जल्दी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी ऐलान कर दिए जाएंगे, और उसके बाद एक परसेप्शन जरूर है। और जो ये उतार चढ़ाव हुआ है वो भी लोकसभा से पहले, तो इसका काफी एक तरीके का अपना प्रभाव जरूर देखा जा रहा है। सर, एक आखिरी प्रश्न, आपके सूत्र आपको क्या बताते हैं, या ये जो 8 वोट्स हैं जिन्हें इनवैलिड बोला गया, सर क्या हुआ था अंदर, आप बता सकते हैं? क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं जो कहते हैं कि पेपर को फाड़ा गया, आप बता सकते हैं हुआ क्या? देखिए, उन पर कुछ ना कुछ मेंशन किया गया है जिससे वो वोट की जो एक वैलिडिटी होती है वो वैलिड नहीं रहे। जैसे एक वोट पे अगर किसी को वोट दिया गया है पर्टिकुलर पार्टी को या नाम को मेयर के लिए, तो उस पर जब डबल मेंशनिंग हो जाए या कुछ लिख दिया जाए या अलग से मार्क कर दिया जाए तो उसको इनवैलिड कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जिनकी वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिन पर इल्जाम अब लग रहे हैं, तो वो जब साइन कर रहे हैं वोट को चेक करके, तो एक
साइड में उन्हीं वोट्स के कुछ नोट डाउन किया जा रहा है और वो उसको माना जा रहा है कि वो नोट डाउन की बजाय वोट्स को इनवैलिड कर रहे हैं। तो उन वोट्स को इनवैलिड करना ही कहीं ना कहीं भाजपा की जीत है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक पार्शल रवैया है। ये इल्जाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, लेकिन ये फिर भी जांच का विषय है और इस पर ऑथेंटिकली ये कहें या हाईकोर्ट से कहें या उच्च कोई भी अधिकारी या इसमें जो कमांडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से जांच करती है, क्या इसको कंसीडर करती है और जांच करने के बाद कंक्लूड क्या करती है,